Screen time is the time which we spend in front of any device with the screens such as smartphones, televisions, laptops, and computers. We as humans are continuously evolving with our surroundings. One such thing that we learned to live with is technology. It is a boon for the world, but it too has its side effects. We all know that too much of everything has negative impact. Same goes for the time we spend on devices with screens. Our brain wires differently to the things we do, and we are trapped in a cycle of unhealthy living. Our brain wires to be the same. It is very important to understand when to stop an activity so that it doesn't become an addiction. I would like to invite Dr. Rajiv Nandi sir to enlighten us more on its causes, biological and mental effects on the individual, and provide solutions to manage situations with children. Sir is the founder and chairman of Shrishti Forum for Able Sensorium Psychologist. Sir is also the National General Secretary of Association of Rehabilitation Psychologists and Professionals India. He has 25 years of experience with child and adolescent and is associated with many schools. Sir, kindly take over from here. Yes, thank you, Shivani. I believe I am audible to all of you. Yes, sir. Okay, so a very pertinent topic for today, that is screen time and its effect on mental health and the solutions. The fact that why is it so pertinent at this point of time? Because the pandemic is on, and because of the fact that the pandemic is on, most of our work is going on online. And when I say it's going on online, means we are using more of the screen time. What is the screen time? Especially the use of our laptops, the use of our smartphones, which has become the medium for instruction, which has become the medium for learning, which has become the medium for imparting knowledge. So it assumes a huge significance at this point of time, and we realize that screen time has increased. Mental health professionals are perplexed as to what should be the appropriate screen time, because we have been constantly saying that screen time has to be reduced, the screen time has to be limited. And on the other hand, we see that the screen time is bound to increase. This has become the only medium for instruction. So what's the way out? Next question which comes to our mind is this appropriate screen time? What should be the ideal time that we should be spending on our screens? That also we'll discuss. Why mental health of children and adolescents assumes so much of significance? Why? Because our children and adolescents are our future for tomorrow. Every country invests in their youth, in their children, in their adolescents, so that the country's future becomes bright. And if the mental health does not become a priority, then the country suffers as a result. Now, what is positive screen time? This is also being debated, because we have been hearing about children idling on certain games, PUBG, on the Facebook, on other mediums like the Instagram, and the other fake means where they have been spending a lot of time. So what happens as a result of that is that they sleep less, they spend a lot of time on the screen, and finally it affects their mental health. So what we are going to do is we are going to open this box. We are going to discuss. We are going to discuss as to how should it be. Harun, I would request you to please switch off your screen. I would want you to just hear me, because it distracts me, right? I would want you to just switch off the video part. Even Shivani, I would want you to switch off the video part, right? Yes, Shivani and Harun, both of you, because it's distracting me. So what is positive screen time? So these are some of the very important questions that comes to our mind. I would request each one of you, whomsoever I am able to see you on the screen, to please shut down your screen, because it's distracting me. I'll ask you when to unmute, right? And at that time you can speak, right? And you can again, whenever required, I will ask you to again maybe open your screen, and so that I would be able to see. So now the important question is as to how do we open this box of riddles, puzzles. So this is an important question which we need to address. And as mental health professionals, all of you, I would want you to ask questions in the end,
so that it becomes a more meaningful discussion. Well, now coming to some of the case studies that have been coming to me, I know of children who have stopped going to school, who simply refuses to go to school because of the fact that he is so addicted to his games or gaming and other activities related to screen time, that slowly he has lost that self-esteem. And of course, he's missing out on studies and he doesn't want to go to school. I know of children who have stopped socializing completely. In the evenings, they would simply not step out of their house, remain within the confines of their house, and constantly into playing all these games, right? All virtual friends. Children who have very poor social esteem or self-esteem, and who strongly believes that he cannot do anything worthwhile. At home with the parents, the child could be, he can throw tantrums, he can show that he is absolutely at ease. But when he has to move out or step out of the house, he cuts a very sorry face. And he believes, when asked, he believes that he is not capable of doing anything work. Children, I know of a child, I know of many, I think you might have also read it in your newspapers, that children have stabbed his own family as they stopped him from playing games. Huge, tough, difficult. Do we really want a society to be like this? Aggressive. Don't know from where it is coming. Child who died as he played non-stop for 18 hours into games, into gaming. Played for 18 hours. The brain couldn't take it. Died of shock. So it's not merely a game which is to be taken lightly. It is becoming a tough problem that we are facing, which needs to be addressed as early as possible. And I tell you, WHO has come up and they have termed it as a gaming disorder is a disorder now according to WHO norms. According to the American Psychiatrists Association, or AP. Now, what they say is, on the basis of the DSM-5, though gaming is not included as a disorder, but they are keeping a very close watch on it. So this is a matter of concern that various leading organizations around the globe, they have been constantly watching it and setting certain norms, rules, and are constantly talking about it as to how do we address it. Maqsood, I would want you to again close your screen. It's coming and distracting me. So Maqsood, if you are able to hear me. Okay, so now I'll ask you a question. And this question I'll ask you again in the end. As mental health professionals, अपने आप से पूछिए कि जब मैं गेम खेलता हूँ या खेलती हूँ या मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, मैं यूट्यूब में, मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, क्या मैं एग्जॉस्टेड फील करती हूँ या करता हूँ? रात को सोते समय या जब मुझे सोना हो, क्या मैं एंशियस फील करता हूँ? क्या मैं बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर लेता हूँ? या मुझे एक कांस्टेंट लो फीलिंग मिलता है? क्या ऐसा होता है? आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज, जब मैं बहुत टाइम तक खेलता हूँ या जब मैं बहुत टाइम तक यूज करता हूँ, जरूरी नहीं है आप खेलते हो, ऑब्वियसली आप यूज करते हो, आपके काम के लिए यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, फिर फेसबुक यूज करते हो क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको अपडेट रहना है, आपको बहुत सारी जानकारी लेना है दुनिया को, जो कि पॉजिटिव है, बहुत ज़रूरी भी है। या आप यूट्यूब में इन्वॉल्व हो रहे हो, अगेन आपको कई सारे फायदे हैं उसके। तो जब हम लोग, और कई बार फायदे के अलावा भी हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम फ्लिप करते रहते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि वो एक काम के लिए ही करते हैं, जब काम नहीं भी हो तब भी करते हैं। तो क्या हम एग्जॉस्टेड, एंशियस, ये लिख लीजिए, अगर आप लोगों के पास एक कोई पेन हो तो ये ज़रूर लिख लीजिए, क्या मैं ये गेम्स खेलने के बाद एग्जॉस्टेड, एंशियस, टेम्पर लूज करना और एक फीलिंग ऑफ लो, क्या मैं महसूस करता हूँ? और इस सवाल का जवाब मैं
लास्ट में दूंगा और आप लोगों से मैं लास्ट में पूछूंगा। तो इसलिए दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई पेन है तो ज़रूर इसको लिखिए कि क्या आप बहुत देर तक जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में आप इन्वॉल्व रहते हैं, क्या आप एग्जॉस्टेड, थके हुए से महसूस करते हैं? आप एंशियस फील करते हैं? आप अपना जो टेम्पर है अपना आ, उसको आप जल्दी लूज कर जाते हैं? आप में एक कॉन्स्टेंटली एक लो फीलिंग आता है? क्या ऐसा होता है आपके साथ? अब ये जो सिम्टम्स है लो साइकोलॉजिकल वेलबींग, बच्चों में कई सिम्टम्स देखा जाता है। क्या ना वो शांति से नहीं बैठ पाते, अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते, वो खासकर जो बच्चे गेम्स खेलते हैं और जो बच्चे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं वो सवाल ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ऐसा लगता है सारा जवाब उनके पास में, ठीक है, दे आर नॉट क्यूरियस। और सेल्फ कंट्रोल जिसके अंडर आता है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब एक काम को अगर मैंने शुरू किया है तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। क्या शांति से बैठना, सिटिंग स्टिल, कंप्लीटिंग सिंपल टास्क, अपने काम को जो भी आपने काम लिया है उसको कंप्लीट करना, बहुत ही सिंपल टास्क। और डिस्ट्रैक्टेड कम होना, ये नहीं कि फोन बेल बजा, डोर बेल बजा, इमीडिएटली भी उठ के जाना, ऐसा नहीं। तो ये जो है ये कुछ सिम्टम्स है लो साइकोलॉजिकल वेलबींग एज ए रिजल्ट ऑफ प्लेइंग गेम्स। आर्ग्यू करना अपने केयर गिवर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, एंजाइटी, एंशियस फील करना, और इवन डिप्रेशन। अब मैं आप लोगों से आज ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है फिजियोलॉजिकल, ऐसा क्यों होता है साइकोलॉजिकल, और ऐसा होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब डिफरेंट वैरायटी के जो सीवियरिटी के जो स्क्रीन यूज करते हैं, कुछ लो यूज स्क्रीन यूज करते हैं, जैसे 2 से 3 घंटा खेलते हैं या 2 से 3 घंटा अपना स्क्रीन यूज करते हैं। कुछ मॉडरेट यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा कम यूज करते हैं, जैसे कि लगभग 4 घंटे के आसपास, 3 से 4 घंटा खेलते हैं। और कुछ हाई यूज मतलब 7-7 घंटे के, 7-7 घंटे अपने स्क्रीन को यूज करते हैं। तो ये तो बहुत सीवियर, और ऐसा सीवियरिटी से वापस अपने किसी भी कार्य में, किसी भी टास्क में फिर से इन्वॉल्व होना बहुत तकलीफ हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग बाउंसिंग बैक टू वर्क। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द मोर यू लूज योर बेस, it becomes more and more difficult for you to come back to that base. अब कई जगह पे, कई रिसर्च, कई जगह पे ये साइंटिस्ट कहते हैं कि गेमिंग का बहुत बेनिफिट्स है ना। तो अगर गेमिंग का बहुत बेनिफिट्स है तो गेम खेलने के लिए हमें अलाउ करना चाहिए। कहते हैं कि गेमिंग से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, गेमिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होता है, गेमिंग से मेमोरी इंप्रूव हो सकता है, गेमिंग से अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है, गेमिंग से इट्स ए ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, ब्रेन का स्पीड बढ़ाता है, मल्टीटास्किंग स्किल्स बढ़ाता है, और इवन सोशल स्किल्स बढ़ाता है। ये एक बहुत ही एक दूसरा तर्क आ गया कि अगर गेमिंग के इतने बेनिफिट्स हैं तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अगर गेमिंग के इतने बेनिफिट्स हैं। तो अगर मैं रिसर्च में थोड़ा सा डीप जाऊं, ये कहा जाता है कि जो सर्जन्स वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स, अगर वीडियो गेम्स जिन्होंने खेला है वो सर्जन्स, दे आर बेटर सर्जन्स with a better precision as compared to their non-gaming counterparts.
ज़्यादातर जो गेम खेलते हैं उनका जो एबिलिटीज है एज ए सर्जन वो काफ़ी बेटर है एज कंपेयर टू दो सर्जन्स जिन्होंने गेमिंग या गेम्स नहीं खेले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिसर्च है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर इतना ही अच्छा है तो हम बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनको मेड स्कूल नहीं भेज के should we ask them to play games and what should be the duration of those games to become better surgeons? So these are some points of debate. अब क्या कहा जाता है, even research has proved that video games can help people overcome dyslexia, जिस पे हम स्पेशलाइज करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज करते हैं कि डिसलेक्सिया को इम्प्रूव किया जाता है वीडियो गेम्स के थ्रू। एक स्टडी ने प्रूव किया है कि डिसलेक्सिक्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हुआ है आफ्टर सेशंस ऑफ गेम्स हेवी ऑन एक्शन। और इसका कारण ये दिया जा रहा है कि गेम्स हैव कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर्स इंटेंस फोकस, क्योंकि इन लोगों में विजुअल परसेप्शन की डेफिसिट्स होती है। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली अपना एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बच्चों में वो फोकस बनाते बनाते उनका रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो रहा है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो रहा है। तो रिसर्च ने ये भी बताया। अगर रिसर्च ने ये बताया तो हमें कन्वेंशनल ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? हम तो वीडियो गेम्स लगा दें स्कूल्स में, हम तो वहाँ पर मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वीडियो गेम्स खिलाए बच्चों को, ताकि वो अपना प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाए। तो क्या ये अलाउड है? ये सवाल है जिसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो गेम्स कुड pick your interest in history. There are many children who do not like to study history. और काफ़ी बच्चे देखने को मिलते हैं जो एडोलेसेंस कहते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ने में सर बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमें बहुत रटना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है, ये सवाल लो, ये सन वो सन, हमें क्या करना, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें इतना सारा चीज़ें क्यों करना। खैर, हिस्ट्री के अपने इम्पोर्टेंस है, वो समझता हूँ, वो अभी मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन गेमिंग के थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी डाला जा रहा है और उस इवेंट्स में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है और उससे उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री के लिए डेवलप हो रहा है। अगेन रिसर्च हैज प्रूव्ड this is another benefit of gaming. A video game, ये कहा जाता है कि अगर कोई ये गेम्स खेलते हैं उनका एजिंग प्रोसेस वो भी स्लो हो सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अगर वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनका जो एजिंग प्रोसेस है, वो जो फास्ट जो एजिंग नॉर्मल एजिंग है वो उसको भी हम लोग स्लो कर सकते हैं। तो वीडियो गेम्स एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं। तो ये भी एक फाइंडिंग है। वीडियो गेम्स कैन हेल्प यू मेक न्यू सोशल कनेक्शंस। अब सवाल ये उठता है, सोशल कनेक्शंस वीडियो गेम्स के थ्रू कैसे होता है? अब बच्चे आजकल जो गेम्स खेलते हैं पबजी और ये, इसमें ये अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कई बार नए लोग भी होते हैं, उनको एज पार्टनर्स वो बुला लेते हैं, वो गेम्स खेलते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि गेम्स खेलने के बाद ये आपस में मिलते हैं और आपस में जब ये मिलते हैं तो इनमें सोशलाइजेशन और नया सोशल कनेक्शंस इनमें डेवलप होते हैं। तो ये वीडियो गेम्स सोशल बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर पा रहा है। जो हम सोच रहे थे कि शायद सोशल बिहेवियर तो बाहर निकलने के बाद ही हो सकता है जब हमको आपस में मिले, लेकिन यहाँ तो वीडियो गेम्स के थ्रू सोशल कनेक्शंस पे इम्प्रूव और वीडियो गेम्स बैलेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखा गया है, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उनको
स्टैंडिंग बोर्ड पे, उनको बैलेंस बोर्ड पे हम खड़े करके जब हम कोई गेम्स देते हैं जिसमें चैलेंज हो, तो देखा जाता है कि वो उसमें बैलेंस भी उनका इम्प्रूव, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा तकलीफ है जिसमें बैलेंसिंग धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और उसमें कोई मेडिकेशंस और बाकी की चीज़ें बहुत कामयाब नहीं है, बाकी के मेडिकल इंटरवेंशन। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर आप ये गेम्स खिलाते हैं तो उनमें बैलेंस का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हो रहा है। तो ये भी एक फाइंडिंग है। और ये भी एक फाइंडिंग है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी improve होता है, कि वो फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं, वो जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि गेम में आपके पास स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है। उन गेम्स को आप खेलते हो, आपका जो रिफ्लेक्सेस है वो काफ़ी फास्ट है, तो जिसके थ्रू आपके जो ऑटोमेटिसिटी है या जो आपके प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। तो ये भी देखा जाए कि क्या रहा है, ये भी प्रूव्ड है कि इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एंड वीडियो गेम्स कैन हेल्प एड्रेस ऑटिज्म। ये भी एक रिसर्च फाइंडिंग है कि वीडियो गेम्स और गेमिंग, अभी गेमिंग के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, गेमिंग के बहुत सारे और नए टेक्नोलॉजी आ रहा है वो इन द फील्ड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एज वेल एज इन ऑटिज्म, जहाँ पर ये वीडियो गेम्स के थ्रू सोशलाइजेशन इन ऑटिज्म भी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे गेम्स खेलते हैं, दूसरे अपने पार्टनर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। So sharing space with multiple partners can also lead to increased social interaction for those with the disorder. So ये एक फाइंडिंग है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया शुरू में ही आपको कि वीडियो गेम्स या गेमिंग या स्क्रीन टाइम, इसके कितने एडवांटेजेस हैं, और मैंने आप लोगों से ये भी बोला कि हमारे पास इतने बच्चे आ रहे हैं जो नेगेटिव चीजों को लेके आ रहे हैं, जो नेगेटिव सिम्टम्स को लेके आ रहे हैं, जो नेगेटिव मेंटल हेल्थ के इश्यूज को लेके आ रहे हैं, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो गेम्स और गेमिंग से इतने सारे फायदे, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और जिनके पास में इतनी सारी समस्याएं हैं, पेरेंट्स के पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जिसको लेकर वो क्लिनिक्स पे आ रहे हैं कि इनका सुधार करो, जिसके कारण वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, जिसके कारण वो बाहर खेलने के लिए नहीं जा पा रहे, जिसके कारण वो उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो ये एक अलग समस्या है। It becomes really tough to understand as to है क्या फिर, और इसको कैसे, मतलब व्हाट इज द राइट डोज, क्या करना चाहिए हमें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनका कहना यह है कि जो बच्चे 2 साल से ऊपर है उनका जो स्क्रीन टाइम है वो दिन में 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। So now do you understand the limit? The limit is that the children who are older than two years, then the limits have to be, it has to be that the children should not be playing games or other gaming related or using the screen time for more than an hour. So this is a limit set by the American Academy of Pediatrics. Or, as I told you earlier again, कि WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर करके उन्होंने अपने जो 11th रिवीजन है ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में उन्होंने इसको इंक्लूड किया है, जबकि DSM-5 जो भी अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन का जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन, उसमें अभी तक इसका इंक्लूजन अभी तक हुआ नहीं है, दो दे आर कीपिंग अ वेरी कीन वॉच, दे आर वाचिंग इट वेरी सीरियसली, it should be include this in any form of a disorder. So maybe in the next edition, maybe they will take it seriously and work on it. At this point of time, we see that the American
Academy of Pediatrics rising up to the occasion and saying that yes, we have to limit their uh, screen time to not more than an hour, and WHO saying that this is a disorder. अब सवाल ये उठता है कि 1 घंटे का जो अगर टाइम है, और अब इस पैंडेमिक में हम लोग कितने घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल्स कितने देर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डिपेंडिंग ऑन देयर एज उनके क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और it is being allowed, the CBSE has allowed it, and it is being carried out. Right? So what I would like to say is that now this gaming disorder is something that we need to really take note of. Sorry, I got distracted because there was a call, and let me switch off my mobile. Now, as I was sharing with my dilemma, but according to a pediatrician, Dr. Wendy, and based on his research, he says that there is a distinction between screen time that is educational and screen time that is not. Which means कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशनल स्क्रीन टाइम यूज करने के लिए दे रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव, और अगर ये एजुकेशनल नहीं है, then it has to be limited to not more than an hour per day, which includes these games. And as I told you, these games have, and we have been discussing, I have told you that these games have its own benefits. The dyslexic can use it, children with autism can use it, children with other difficulties can use it, even normal children can use it. So they can use, but not more than an hour. 1 घंटे से ऊपर नहीं. तो अगर स्क्रीन टाइम हम यूज कर रहे हैं एक पॉजिटिव काम के लिए, तो स्क्रीन टाइम इज अलाउड टू बी यूज फॉर 3-4 hours as recommended by the school, and beyond that, if it is used for a particular reason, then it is to be allowed. This is very, very clear, I think, to each one of you. अब देखिए, स्क्रीन टाइम को अगर ज़्यादा देर हम यूज़ करते हैं, बच्चे घर पे ज़्यादा बैठते हैं, हमें पता है कि ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है. सोशल इंटरेक्शन भी ठीक है, बच्चे जो बड़े हैं वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर खेल लेते हैं, अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, बाहर बुला भी सकते हैं आफ्टर प्लेइंग दोज गेम्स. समवेयर जिस सोशल इंटरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो काम आप एज टीचर्स, एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आप लोग कर रहे हो, वो नहीं कर सकता. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. चाहे आप कैसे भी सेटिंग्स में, उनका स्कूल जाना, बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ फिजिकल गेम्स खेलना, ये सब बहुत ज़रूरी है. अब मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए इसमें कि एग्जैक्टली फिजियोलॉजिकली शरीर के अंदर क्या होता है. जब आप गेम्स खेलते हो तो आपके जो प्यूपल्स है, आपके जो आइज के अंदर जो प्यूपल्स है, आप मान लीजिए आपने गेम खेला, आपने अपना मोबाइल यूज़ किया, आपने अपना काम से अपना व्हाट्सएप यूज़ किया, आपने जो भी यूज़ किया, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे आइज के अंदर जो प्यूपल्स है वो डायलेटेड हो जाता है. अगर वो डायलेट होता है तो हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन का एक बहुत अहम रोल है हमारे शरीर में. वो रोल क्या है, वो हम उसकी जो सिक्रीशन है, उससे हमारा स्लीप साइकिल बनता है, उससे हमारा सर्कैडियन रिदम बनता है कि मैं इतने बजे सोऊं, इतने बजे उठूं. आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं और जाते हो, कहीं और किसी और कंट्री में जाते हो जिनका टाइमिंग्स अलग है,
आप सो नहीं पाते हो, आप अपने हिसाब से कर नहीं पाते हो, आप अपना यहाँ पर भी अगर आप रात को नहीं सोते, आप सोचते हो कि मैं दिन में सोने की कोशिश करूँ, आपको नींद नहीं आती क्योंकि somewhere your circadian rhythm gets upset. So what happens is because of this melatonin secretion, the circadian rhythm gets affected, and then what happens is the circadian rhythm uh, actually disturbs and bothers. So this is extremely important that first when you are sleeping, your sleep will, um, as a result of your sleep, your melatonin secretion happens, and your melatonin secretion, it helps you to develop the circadian rhythm and sleep. And as you sleep, and if you are not able to sleep, say if you have a uh, if you have uh, you have a disturbed uh, yourself through those dilated pupils with which you have slept, then as a result of poor melatonin secretion, as a result of poor circadian rhythm, and as a result of poor sleep, then the secretion of dopamine and serotonin is also affected, which acts as happy hormones. And these happy hormones, it induces crankiness, एक चिड़चिड़ापन हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। और ये जो चिड़चिड़ापन है, ये आगे जाके हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप रात को सोते समय अपना मोबाइल यूज करते हैं, अपना सेल फोन यूज करते हैं, अपना लैपटॉप यूज करते हैं, अपना कुछ भी आप यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद सोने की कोशिश करते हैं इमीडिएटली, आपको सोने में तकलीफ होना है, क्योंकि आपके जो आईज है वहां पर प्यूपल जो है वो डायलेटेड रहता है। और अगर वो डायलेटेड है, जो मेलाटोनिन है विच कंट्रोल्स योर स्लीप साइकिल, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। और अगर उसका सिक्रेशन कम होता है तो हमारा स्लीप साइकिल अपसेट होता है। स्लीप साइकिल अगर अपसेट होता है तो सेरोटोनिन और डोपामिन का जो सिक्रीशन है वो अपसेट होता है। अगर उसके अपसेट होने से हम क्रैंकी बनते हैं, हम चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है हमारे अंदर। जितने भी सिम्टम्स मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, जो गेमिंग के बाद में जो रिजल्ट होता है, तो वो सब कुछ आता है। और सोचिए, ये तो आप मान लीजिए सोने से पहले हो सकता है आधा घंटा पौन घंटा आपने पहले इसको यूज किया है और करने के बाद सोने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड हु हैज प्लेड 4 to 5 hours ऑफ गेम्स, और जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड हु हैज बीन प्लेइंग, और आप तो सोने की कोशिश कर रहे हो समवेयर अराउंड 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, और यहाँ पर एक बच्चा गेम्स खेलते खेलते या अपना स्क्रीन टाइम को यूज करते करते वो 2, 3, 2, ढाई, 3, 4 बजे तक जाके सोता है। Just imagine the kind of mess that the child is getting in. Just imagine what would be going on in his mind, and just imagine what this child can do when he is asked to stop. उसको बोला जाता है कि अब तुम नहीं खेलोगे। और आप लोगों को मैं बताऊं साइकोलॉजिकली व्हाट हैपेंस, हम किसी चीज के लिए किसी को मना करते हैं ना, अगर हम उसको जबरदस्ती मना करते हैं तो हमारा उसका क्रेविंग बढ़ जाता है। हम किसी को बोलते हैं कि नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं खाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, हमारा क्रेविंग बढ़ता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। और जब हमारे अंदर ये क्रेविंग बढ़ता है और कोई बोलता है नहीं करोगे, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके कारण कई बार ये भी होता है कि हम फिजिकली एग्रेसिव हो जाते हैं। हम ऐसा भी कोई हिसाब हो सकता है कि हमने किसी को मार ही दिया, गुस्से में हमने किसी को मार ही दिया, हमने गुस्से में इतना कुछ नुकसान कर दिया कि बाद में बैठ के हम लोग सिर पटक रहे हैं कि हमने क्या कर दिया ऐसा। So it is not on the spur of the moment, it is basically something that we have allowed to grow. So now do you understand that if this kind of a thing is happening, then what is the right dosage? The right dosage is we can allow, as teachers, as professionals, as parents, as other stakeholders, you need to allow them to play for not more than an hour per day. Secondly, before going off to sleep, we need to encourage our children. We need to encourage our adolescents.
that they should indulge in some simple reading from the books, or doing some mindfulness activities, or doing something really peaceful before going off to sleep. Because as I told you, otherwise this cycle of melatonin, serotonin and dopamine, it can actually lead to a complete mess. And when somebody is being restricted, he can get violent. And it is not just only for the children or the adolescents I am talking about. It can happen to us also. And this is the reason why I asked you this question in the beginning, that do you feel like this? Where you feel anxious, where you feel low, where you feel frustrated, do you feel like this? So I'll ask you in the end that what you have to say. Now, this cycle of negativity definitely has to be looked into, and we need to take care of that. And as per research, I would again repeat, 1 hour of play, more than 1 hour of play, and this is what I'm talking of research. ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने experience की बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about proved research from known sources. More hours of daily screen time were associated with lower psychological well-being, including less curiosity, lower self-esteem, more distractibility, more difficulty making friends. ठीक है, हम थोड़ा सा तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं उस तरीके से, लेकिन जो फ्रेंडशिप हम लोग एक सोशियो इमोशनल कनेक्ट के थ्रू बना सकते हैं, वो दोस्ती हम लोग, वो फ्रेंड्स हम लोग इसके थ्रू नहीं बना सकते. लेस इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, इमोशनली स्टेबल नहीं होना, हर चीज पे इफेक्ट हो जाना, या कोई मतलब प्रॉब्लम्स भी अगर आया तो उसका रेसिलियंस नहीं होना, उसको हैंडल नहीं कर पाना, बहुत लेस इमोशनल स्टेबिलिटी होना, एंड become being more difficult to care for and inability to finish task. मतलब कोई भी काम हमने शुरू किया उस काम को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा भी डिफिकल्टी होता है अगर हम लोग 1 घंटे गेम्स खेलते हैं. और अगर हम 1 से ज़्यादा गेम आवर्स की गेम खेलते हैं तो हमारे जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है तो वो और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है. हमारे अंदर एंजाइटी आ जाता है, हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है, और कहा जाता है कि 50% of our mental health problems are surfaced during our adolescence. मतलब ये नहीं कि किसी को अगर डिप्रेशन हो गया तो उसको अरे वो तो ऐसे ही था, सडनली डिप्रेशन हो गया. I tell you, 50% of our psychological well-being of all mental health illnesses have got its base in early childhood and in adolescence. And that's the reason why it assumes so much of significance that we need to nurture our children, our adolescents in a manner so that we can have a healthy mental health for our country. And this is what each government looks at. This is what everybody's goal becomes, because if the mental health of a country is not good, then the country is not expected to progress the way it should. So इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मैं आप लोग पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, स्पेशली एजुकेटर्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिलर्स है हमारे डेवलपमेंट के, वो पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं, और उन पिलर्स को अगर हम मजबूत करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का सेंसरी मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो, बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट मतलब बच्चा खेलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, उसको 1 घंटे के फिजिकल एक्टिविटीज खेल के कूद के अपना सब कुछ करके उसको आना चाहिए. The children, they should play at least for an hour every day, physical games that they should play. सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यस, बाहर जाए, खेले, अपने बारे में जाने, दुनिया के बारे में जाने, दूसरों से इंटरेक्ट करे, बहुत जरूरी है.
Cognitive development, again, attention, concentration, reading, writing, ये सारे डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. These are some of the pillars of our development and we need to work on these pillars of development. और ये pillars of development के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाके खेलें. और अगर बच्चे बाहर नहीं जाते हैं तो obviously उनमें हमने देखा है कि जो बच्चे स्पेशली जो गेम्स खेलते हैं, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके अंदर पुअर पोस्चर, पुअर बैलेंस, पुअर मसल टोन, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी, मतलब कि अगर ऊपर चढ़ा दे थोड़ा बैलेंस करने के लिए बोले पेड़ पे चढ़े, नहीं कर पाते. ड्रेसिंग के लिए स्लो, शू लेसिंग नहीं कर पाते. हैंड राइटिंग अगेन पुअर, कंसंट्रेशन, लिसनिंग स्किल्स पुअर, स्लो कंप्लीशन ऑफ क्लास वर्क. अब देखिए कितना इम्पोर्टेंस है कि बच्चे बाहर जाके खेलें और उससे उसका रिजल्ट क्या हो सकता है. अगर बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, इसका रिजल्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया कि उनका पुअर पोस्चर, पुअर बैलेंस, मसल टोन लो, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी, ड्रेसिंग स्लो, illegible handwriting, immature drawing, limited concentration, slow completion of task, classwork, continued high level of motor activity, and problems with coordinating a spoon even. और लेटर प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि वो गेम्स स्पोर्ट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्लमजी, एक्सीडेंट प्रोन, कहीं पर भी मतलब खेलते खेलते गिर जाना, बहुत जल्दी थक जाना, अवॉइडेंस इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन ड्राइंग, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स आता है अगर वो ये जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की तरफ हम बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं तो. और बच्चे अगर घर के अंदर कन्फाइंड होकर सिर्फ गेम्स ही खेलते हैं या स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. और इसके अलावा जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, अपने आप को जानना, दूसरों के बारे में जानना, दोस्ती करना, दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर करना, एक इमोशनल कनेक्ट बनाना सबके साथ में, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में, और इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाना, मोरल रीजनिंग कर पाना, ये सब बहुत ज़रूरी है. जब बच्चे बाहर जाते हैं, दूसरों के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. और इसी से ही, क्योंकि अगर बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं फिर ये इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. और इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बॉन्ड बनाए, उनको स्टोरीज सुनाएं, उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ में एक ऐसा बॉन्ड बनाए कि जिसके थ्रू बच्चे उनको सुने और उनको फॉलो करें. और अगर ये सब चीज़ें अच्छा होता है, अगर सोशल इमोशनल कनेक्ट अच्छा होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर अच्छा होता है, तो मदर चाइल्ड बॉन्ड इम्प्रूव होता है, इमेजिनेशन स्किल्स बच्चों में अच्छा डेवलप होता है, थिंकिंग स्किल्स बच्चों में अच्छा डेवलप होता है, एनालिसिस इम्प्रूव होता है, लॉजिकल रीजनिंग इम्प्रूव होता है, रीडिंग के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है, वोकैबुलरी इम्प्रूव होता है, स्पेलिंग्स इम्प्रूव होता है, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता है. और जैसे कि हमने हिस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस किया, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से वो हिस्ट्री के बारे में और जानकारी लेते हैं. और फाइनली इसके थ्रू ओरल लर्निंग भी बहुत इम्प्रूव होता है. और अगर ये नहीं होता है, अगर जो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे आप लोग देखेंगे, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में, आपके अलग जगह पे जहाँ पर भी आप लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर अगर बच्चे उनका जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उनका सोशल बिहेवियर बहुत पुअर होता है. उनको पता नहीं होता कि उनको कैसे बिहेव करना है इन रिलेवेंट सिचुएशंस, विड्रॉन होते हैं, शाई होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इरेलेवेंट सा होता है, दोस्त नहीं होता है. दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर है कि बच्चे के पास कोई दोस्त है या नहीं है. अगर कोई भी पेरेंट्स कहते हैं कि इनके पास इनका फ्रेंड्स नहीं है, तो ये हमारे लिए एक अलार्म बेल है. और ये मुझे पता है कि आप लोगों के लिए भी अलार्म बेल है. आप लोग डेफिनेटली इसकी तरफ ध्यान देते होंगे कि दोस्ती करना, दोस्त बनाना ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पढ़ाई लिखाई से वो एक सिंगल एस्पेक्ट है. अदरवाइज इनका जो ओवरऑल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है वो नहीं हो पाता. तो और अगर ये लास्ट करता है तो ये एंजाइटी क्रॉस करता है, पुअर सेल्फ एस्टीम क्रॉस करता है,
पुअर मोटिवेशन कॉज करता है ना, अल्टीमेटली डिप्रेशन भी कॉज करता है। तो आप देख रहे हैं अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो एंजाइटी भी कॉज करता है, वो सेल्फ स्टीम भी पुअर होता है, मोटिवेशन में भी कमी होती है, और आगे चल के उनका उनमें एंजाइटी के साथ साथ में डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू उनका अटेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, और ये सब चीज़ें इम्प्रूव होता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब। घर पे बैठे बैठे सिर्फ काम नहीं हो पाता। अगर आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अटेंशन। मैं कहता हूँ कि गेम्स के थ्रू अटेंशन डेवलप हो सकता है, लेकिन जो अटेंशन गेम्स के थ्रू हो रहा है वो एक सिर्फ अटेंशन का एक सिंगल पार्ट है। अब उस पार्ट को यूज करना इन एकेडमिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों का काम है, ये टीचर्स का, स्पेशल एजुकेटर्स का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का, आप लोगों का काम है कि आप किस तरीके से इसको जनरलाइज करके अपने थेरेपीज में यूज करो ताकि इनका अटेंशन स्पैन बढ़ सके। ये तो एक, और वो जो लिमिट्स है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था गेमिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, उससे ऊपर नहीं। अगर उससे ऊपर हम किसी भी बच्चे को गेम्स के लिए या गेमिंग के लिए अलाउ करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें क्यों ना हो, सीखने के लिए क्यों ना हो, अलाउ करते हैं, इट इज़ गोइंग टू हार्म द चाइल्ड मोर देन डूइंग गुड। So, as I was telling you that finally, I would say that राइट मेथड्स और एक्टिविटीज जो कि स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकता है, एक्टिविटीज टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, क्योंकि हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है जब बच्चे आते हैं हमारे पास में, कहते हैं कि ये तो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक ये सोता है और सुबह उठता है 11 बजे। वी डोंट नो, एंड ही इज ऑलवेज एंग्री, ही इज ऑलवेज अपसेट, और हमारे साथ हमारा रिलेशनशिप बिगड़ चुका है। अब हम क्या करें? तो सबसे पहले तो जो हैंडलिंग है वो है, कार्ल रॉजर्स का जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो है अनकंडीशनल लव। That unconditional love, when we shower it on the child slowly starts getting involved with it. And beyond that unconditional love is that conditional love. अगर करोगे तभी मेरे पास आओगे, नहीं करोगे तो मुझसे दूर रहोगे, तब तक आप उसको अपने जो बॉन्ड है उसमें फंसा चुके होंगे। So that is how Carl Rogers work. So it is basically that bond that you develop with the child. Initially it is unconditional, and then later on it is a conditional love, and that is how you make the children do it. So once the bonding is developed with the therapist, with the parents, then the child slowly starts performing. इसके अलावा एक रूटीन सेट करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। रूटीन शुरू में हो सकता है उस रूटीन को वो 100% फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रूटीन 100% फॉलो करना बहुत ही टफ है, नामुमकिन सा ही है शुरू में। तो शुरुआत में अगर बच्चा 40%, 50% रूटीन फॉलो करते हैं, हम स्लोली उसको रिवॉर्ड करते हुए रूटीन को लेते हुए चले, क्योंकि उनका रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका होता है, उनका सर्कैडियन रिदम खराब हो चुका होता है, उनका जो स्लीप साइकिल है वो खराब हो चुका होता है, वो सब कुछ खराब हो चुका है। हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि एक तो आपको फैमिली रूल बनाना है कि किसी भी हालत पे 10 बजे के बाद आपको ये सेल फोन या स्मार्टफोन या आपको कंप्यूटर्स फॉर गेम एंड दिस एंड दैट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज आवर फैमिली रूल। आपके रूम के अंदर कोई भी ऐसा गैजेट नहीं होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। तो उस रूम से पूरा गैजेट्स हटा दिया जाता है। पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि उस रूम के अंदर वो कोई गैजेट नहीं रखे, एंड दिस इज पेरेंटिंग। This is where parents are told how they have to be literally little tough, because as you develop the bond, और शुरू में अगर हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके ये मामला बिगड़ जाता है। शुरू में पेरेंट अगर ये रूटीन बना लेते हैं, ये सिस्टम बना लेते हैं कि किसी भी हालत में हम 10 बजे के बाद फिर बच्चे को कोई भी स्मार्टफोन हम नहीं देंगे, so then it helps. And as I told you, before going to sleep, the child should not use a smartphone or any gadget, because the dilation of the pupil leads to some disastrous results in the end. So that has to be reduced, and
We have to see to it that the negative effects of the physiological results that have to be avoided. So, and secondly, इसके अलावा reading habit before going to sleep. This is important. Reading habit मतलब reading habit of books, right? Not reading habit from smartphones. And as I would say, sometimes what happens is parents say that we are very busy throughout the day. We are busy, and my child has to do this, a lot of expectations. But yes, very busy parents are actually promoting poor mental health unless they have support at home in the form of grandparents. So very busy parents, I always advise them that you have to now reduce your time so that you can monitor your child's growth, because at times when parents are extremely busy, they allow all these gadgets to their children and so as to buy peace, and later on this peace becomes robs them of this peace later on as these children turn into adolescents or maybe even adults. They take them to psychiatrists, psychologists, and taking their help to find out solutions. So it is very, very important to take care of these things at an early age. Mindfulness, meditation, lots of all these kinds of activities are recommended. I would again recommend that the parents should have family time, where they should spend family dinner, and that they can interact while having dinner, and even board games. A simple game of card, chess, ludo, all these games definitely helps in developing bonding. It helps in developing skills. It helps in weaning the children away from these games. And as we set these kind of rules, and as we are able to manage and monitor these, so children, they perform better, they comply with your requests. And certain things are to be strictly avoided. That is, the children, they should not sleep with devices in their bedrooms, not at all. This has to be completely avoided. This you even as mental health professionals, you need to tell all the parents who come to you with these complaints that the children, they should not sleep with devices in their bedrooms, including TVs, computers, and smartphones. And second thing is uh, never force your children to do something, because as I told you in the beginning, the moment you start forcing a child to do something, then he craves for it more, uh, and he would try to do it more. This is a psychological phenomena कि हम किसी को जबरदस्ती मना करते हैं तो वो उसको सादा करने की कोशिश करता है. So slowly we need to wean it off. Slowly we need to establish. Slowly we need to set rules with which the children should comply. So these are certain things that we need to introduce and incorporate in our children's routine. Uh, and again, I come back to the same point. I think all of you can unmute yourself now. Uh, uh, I think you can unmute yourself now. And now, do you feel exhausted? I ask the same question to you again. Do you feel exhausted, anxious, lose temper, and a feeling of low after prolonged use of WhatsApp, FB, YouTube? Do you do you do you feel like this? Yes, let me ask Rajesh sir. Rajesh sir, आपको लगता है कि आप exhausted feel करते हो? Sir, good evening, sir. Actually, exhausted sir, not exactly, because the screen time, I would say कि games की अगर बात करें तो games में involvement इतना ज़्यादा है नहीं. And secondly, as far as the social networking sites are concerned, like Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, and everything. So basically, the screen time limits to only see the notifications only. और इसलिए maximum half an hour or 40 minutes. But हाँ, the concern is that it is just before the bedtime. So that's probably the reason कि थोड़ा सा sleep एक cycle disturb रहता है. But I would definitely take care of this thing कि मुझे half an hour या 1 hour पहले phone को avoid करना चाहिए. Right. So that is how it is. Definitely. हाँ, चिंकी मैं आपको देख पा रहा हूँ. चिंकी, आप exhausted, anxious और एक low feeling होता है आपको? Unmute कर लीजिए अपने आप को. Good evening, sir. हाँ.
तो आपको कैसा महसूस होता? हाँ। सर एक्चुअली पहले तो हम लोग ऑलरेडी जैसे यूज करते हैं सोशल मीडिया वगैरह, वो सब तो पहले भी था। बट अब जब से लॉकडाउन और ये सब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तब से और ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। तो हाँ, उसमें फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, कभी एनेक्सियस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हाँ, कभी कभी फील होता है, लो भी फील करते हैं बहुत बार। तो कभी ऐसा होता है कि क्लासेस भी लेने का मन नहीं करता, या फिर पूरे दिन ऐसा फील होता है कि फोन भी छोड़ दें, हम फोन भी यूज ना करें। ठीक है। अब किसी और को कोई सवाल पूछना है, किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी हु हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर लविशा है। सर एक्चुअली क्या होता था लास्ट टाइम, मतलब पहले भी मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो मेरा नहीं होता है कि मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम नॉट यूज टू टेक क्लासेस ऑनलाइन। बट लास्ट 2-3 मंथ से हम लोग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो सर इसकी वजह से पहले भी ये होता था कि मुझे स्क्रीन टाइम ज़्यादा पसंद नहीं था, कि मतलब कॉल पे बात करना या फिर वीडियो चैट्स वगैरह करना। बट क्योंकि ये एक नेसेसिटी थी और करना ज़रूरी था, तो आई एम डूइंग दैट। बट कभी कभी सर होता है कि आप इट कुड लीड टू फटीग एंड अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ बैठे होते हो, और एक पोस्चर होता है जो आपको मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी वजह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें साथ में आती हैं। तो सर वही मुझे पूछना था कि किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो अफेक्ट हमें करता है उसको हम उस अफेक्ट को कम कर सकें? You can try all the mindfulness activities, Latisha. You can try meditation, you can try mindfulness activities, you can try different diversional activities. You can spend some time with your family playing cards, board games, right? So this will help you to divert yourself from the screen, from your regular stuff, the other work that we are doing, the negativity around us because of the pandemic. So you can try all this. Right, and definitely limit your screen time and do not use the screen before going off to sleep, because the more you do it, as I told you, how it affects your sleep cycle. So never use the screen before going off to sleep. आप आँख बंद करके बैठो तो आधा घंटे फिर सो, या नहीं तो आप कोई बुक उठाओ, बुक लेके आप पढ़ो, that helps you. Then using your WhatsApp or doing something and then trying to sleep, it does not allow, it does not happen like that. So that's how it works. So try all these mindfulness activities, try to divert yourself, listen to music, divert yourself, move away from negativism, move away from the news channels. So that will help you to become more positive and try out something. Okay sir, thank you. Or anybody else would like to ask any question? Sir, one query is there. Sir, is there any connection or any relation between the screen time or the language delays or something? Because I observed that in my daughter that जब भी वो हम पहले ऐसा होता था कि ऑफिस से घर पहुंचे तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर ऑलरेडी ओवर सेंसिटिव टू सो मेनी स्टिमुलेशन, तो वी ट्राई कि उसको फोन दे दिया और चुप करके बिठा दिया एंड शी फील्स ओके विद इट। तो उसकी वजह से आई ऑब्जर्व कि उसका जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, हमसे बात करना, इंटरैक्ट करना, वो धीरे धीरे कम हुआ, या स्टार्टिंग में डेवलप ही बहुत, मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा स्लो डेवलप हो रहा है, बट व्हेन आई कंसल्टेड स्पीच थेरेपिस्ट ही सेड कि नहीं, इट इज कम्प्लीटली फाइन, कई बच्चों में होता है डिले। तो ऐसा उसकी वजह से कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है? ऑब्वियसली कलेक्शन है, और यही आपको डेफिनेटली कोशिश ये करना है कि फोन तो देना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। और यही करते हैं हम लोग, वी ट्राई टू बाई पीस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम समथिंग वेयर दे कैन गेट इन्वॉल्व, जो कि उनको हार्म कर रहा है, हमें पता भी होता है और कई बार नहीं पता होता है। तो हम लोग अपना, क्योंकि हम थके हुए होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यही बेस्ट वे है कि जिससे हम लोग अपने आप को बचा लें, लेकिन उससे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट में डेफिनेट नुकसान है, और ऑब्वियसली इसके लैंग्वेज के इसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि ऐसा नहीं कीजिए, आप बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। दैट इज अ टाइम when the child has to be, you have to try out different means and methods of communication for language development. बाकी तो स्कूल जाने लगेगी तो अपने आप और बहुत सारी चीजें सीखेगी,
और आप कोशिश करो कि this is what you need to tell yourself before you reach home, that you have to keep up with the phone and spend some good quality time with the child. I am not expecting you to spend 3-4 hours with the child, but at least half an hour, 45 minutes with the child. Communicate with her so that she can learn some good, she can have some good language inputs from you. Okay, thank you, sir. Anybody else? Any other question? Okay, so that's all for today. And I believe that we had a meaningful discussion today, and I'm sure you would be able to handle your children more sensitively and in a much better fashion. And thanks to all of you for joining, and I look forward to seeing you again. Thank you. Thank you so much, sir, for wonderful session. We have really learned a lot about it, and we have understood so many ways to deal with such problems. Like we are seeing such issues day by day; it is increasing, and we have learned a proper way, and now we can practice these. Inputs we can try. Thanks a lot, sir. Thank you so much. My pleasure, Shivan. My thank you. Thank you, sir.